Welcome to Coordinate Geometry Part 17. In this part, we are going to solve these three problems. These problems are based on standard forms of the equation of a straight line. As we discussed in the previous video, there are 6 standard forms. First one is y equal to mx plus c, where m is the slope of the line and c is the intercept on y-axis. Second equation was y minus y1 equal to m into x minus x1, where x1 y1 is any fixed point on the line and m is the slope of the line. Third was your y minus y1 equal to y1 minus y2 by x1 minus x2 into x minus x1. If a line passes through two given point x1 y1 and x2 y2, then its equation can be written as y minus y1 equal to y1 minus y2 by x1 minus x2 into x minus x1. This is simple slope of the line passing through two given point. It is same as this. And fourth one is x by a plus y by b equal to 1. If a and b are intercept on the coordinate axis, then equation of the line can be written as x by a plus y by b equal to 1. Number 5, x cos theta plus y sin theta equal to p, where p is the length of perpendicular from origin to the line and theta is the inclination of the normal with x-axis in positive direction. Then its equation is written as x cos theta plus y sin theta equal to p. P must be taken as positive. And number 6, x minus x1 by cos theta equal to y minus y1 by sin theta equal to r, where x1 y1 is any given point on the line and r is the distance of any point on the line. R is distance of any point xy, general point xy on the line from x1 y1, and theta is the slope of the line. Slope, not inclination of the line. If there is a line in this way where theta is the inclination of the line, x1 y1 is any given point on the line and xy is any general point on the line whose distance from x1 y1 is r, then equation of the line can be written as x minus x1 by cos theta equal to y minus y1 by sin theta equal to r. These are the 6 standard form of the equation of a straight line. These questions are based on these forms. If anyone is new in this video, you must go through the previous video. I think 11 onward, 11, 12, 13, 14, 15, 16. All these videos are based on equation of a straight line. And then after, let us see these 3 good questions have been selected for you. So let us see. So first of all, let us solve this so that we can rough this portion. These 3 questions for today. First of all, come to this question. इस पर आइए पहले देखिए क्या. The line joining the point A 2 0 and B 3 1 is rotated about A in the anti-clockwise direction through an angle of 15 degree. Okay. Find the equation of the line in the new position. If B goes to C, what will be the coordinate of C?
once again let us see the line joining of the point A to 0. देखिए तो ये ऐसा है, x axis y axis is there. There is a point, suppose 2 0. 2 0 is a point. This is your A. The line joining of the point A 2 0 and B 3 1. Suppose here is a point. This is B, whose coordinate is 3 1. Okay. This is your line AB. Is rotated. ये लाइन रोटेट करता है अबाउट ए. ये जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इधर ऐसा रोटेट करता है. ये लाइन ए के अबाउट रोटेट करता है इधर ऐसा, थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, 15 डिग्री के एंगल से. ये लाइन ऐसा यहां से ये रोटेट कर गया, यहां ये 15 डिग्री 15 डिग्री एंगल से रोटेट कर गया. समझ रहे बात? अच्छा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन न्यू पोजीशन. तो इस ये जो न्यू पोजीशन हुआ ना, अब लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ठीक है. और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन न्यू पोजीशन इफ बी गोज टू सी. ये बी मान लीजिए यहां से यहां आ गया ना, ये सी पर आ गया. तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सी. तो ये सी पॉइंट का अब कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो 3 1 था, ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? और इस लाइन का इक्वेशन निकालना. क्वेश्चन समझ गया? देखिए फिर से थोड़ा ठीक से बनाते हैं इसको. वो एक्चुअली पूरा स्ट्रेट नहीं होगा, इसलिए इसको फिर से बनाते हैं. देखिए ऐसा है, ये एक पॉइंट है यहां ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2 0. ऐसा ले लीजिए. यहां तक मान लीजिए सी है, इसका कोऑर्डिनेट है 3 1. ओके. ये 45 डिग्री से रोटेट हो जाता है और यहां आ जाता है. मान लीजिए ये रोटेशन जो है आपका 15 डिग्री का है अबाउट है. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है और इस लाइन का इक्वेशन भी आपको निकालना है. ठीक है. क्वेश्चन समझे? सबसे पहले ये एंगल निकाल लीजिए. ये कितने का है? तो ये इसका स्लोप निकालिए. इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इफ ए लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, its slope can be written as y1 minus y2 by x1 minus x2. तो इसका स्लोप ये जैसे x1 y1 x2 y2 है. ठीक है. तो y1 minus y2 ये हो गया x1 y1, तो 0 minus 1 by x1 minus x2 means 2 minus 3. ये हो गया इसका स्लोप. तो ये कितना आया? -1 by -1 1 is the slope of this line. 1 slope means tan theta equal to 1. If this angle is theta, then tan theta is the slope of the line. So tan theta equal to 1. So theta equal to 45 डिग्री. तो ये एंगल आपका आ जाएगा 45 डिग्री का. ठीक है. तो ये एंगल था 45 डिग्री का, ये 15 डिग्री से और टर्न कर गया, तो ये पूरा एंगल हो गया अब 60 डिग्री का. तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है. ठीक है. देखिए ये लाइन का इंक्लिनेशन अगर 60 डिग्री हो गया तो इसका स्लोप हो गया 1060. ये मान लीजिए ये बी था ना, ये बी है, बी से सी पर आ गया. चलिए उससे कोई, ये पॉइंट है आपका बी और ये यहां आ गया सी. आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ एसी. एसी का स्लोप हो गया 60 और एसी पास करता है 2 0 से. तो एसी का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. आप ऐसे लिखेगा स्लोप ऑफ लाइन एसी. एसी का स्लोप हो गया
इंक्लिनेशन 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मीन्स √3 is the slope of the line AC. Therefore, equation of line AC, y minus y1, this is your x1 y1 point through which the line passes. Y minus y1 equal to m into x minus x1 is the equation of the line AC. इसका इक्वेशन आ गया, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका AC का इक्वेशन। नेक्स्ट है कि ये C पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। C पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालेंगे? देखिए, लिखने का समय नहीं दिया जाता, आप वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप जब चाहे वीडियो को रोक के उसको लिखिएगा। देखिए, हम लोग ये देखे हैं कि एक लाइन अगर ऐसा है, इसका एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन थीटा और इस पर एक गिवन पॉइंट है x1 y1 और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है xy, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन वो जो लास्ट 6 नंबर वाला था, फॉर्म नंबर 6, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू r, ये होता है लाइन का इक्वेशन, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x1 y1, ओके। तो ये जो पॉइंट है xy इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम x1 y1, दैट पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड। वो पॉइंट xy हम लोग निकाल सकते हैं। x क्या होगा? x1 प्लस r cos थीटा, और y क्या होगा? y1 प्लस r साइन थीटा। नहीं, r अगर ऊपर है या राइट साइड है तो पॉजिटिव लेते हैं, r अगर नीचे होता है या लेफ्ट साइड होता है तो फिर उसको नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ ऊपर ही है, पॉजिटिव होगा। तो ये जो C पॉइंट है, ये A पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस भी तो निकाल सकते हैं हम लोग ना। ये डिस्टेंस निकाल लेंगे तो आपका R निकल जाएगा। R निकल जाएगा तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे लिख सकते हैं, x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। इंक्लिनेशन माने ये पूरा इंक्लिनेशन होगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। लेट अस देखिए, इसको निकालते हैं। पहले आप ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, AC डिस्टेंस रूट अंडर, अच्छा ये C पॉइंट तो मालूम नहीं है ना, C पॉइंट तो निकालना है। ये डिस्टेंस जितना है, ये डिस्टेंस भी तो उतना ही होगा ना, वही लाइन तो रोटेट होके आया है ना। तो ये CB डिस्टेंस निकाल लीजिए। CB डिस्टेंस विल बी सेम एज योर AC डिस्टेंस, इज नॉट इट? तो व्हाट विल बी दिस CB और AC? x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लीजिए, 2 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, प्लस डिफरेंस ऑफ देयर y कोऑर्डिनेट 0 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर 1, और ये भी 1 का स्क्वायर 1 मीन्स 2 मीन्स √2। ये डिस्टेंस आपका √2 है, ठीक है। सो कैन यू राइट कोऑर्डिनेट ऑफ C? आप C पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं। चलो देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ C इज, ये है x1 y1, ये x1 प्लस r cos थीटा, this will be x coordinate of point C, and y coordinate of point C, y1 means 0 plus r cos theta is the y coordinate of point C. So this will be your coordinate of point C. इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 प्लस √2 cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2
और 0 प्लस √2, ये इसमें कॉस थीटा इसमें साइन थीटा होता है ना, x1 प्लस आर कॉस थीटा, x1 प्लस आर साइन थीटा, ये साइन होता है यहाँ, ये साइन 60 होगा, तो साइन 60 √3/2। तो इसको आप √3/2 कर लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा 1/√2, 2 प्लस 1/√2, तो आपका ये हो जाएगा 2 प्लस 1/√2 विल बी द x कोऑर्डिनेट and y coordinate will be √3/2. So in this way we can find coordinate of point C. ठीक है? So I hope you have understood how to find coordinate of C and equation already calculated. Okay? So now come to next question. ये समझे, साइन होता है x1 प्लस आर कॉस थीटा, दूसरा होता है y1 प्लस आर साइन थीटा, उसको साइन कर लीजिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है, समझिए। Question is, find the ratio in which the line segment joining 2, 3 and 4, 5 divided by the line joining these two। बोल रहा है कि find the ratio in which the line segment joining एक पॉइंट है 2, 3, suppose A, and second point is suppose B, it is your 4, 5. Question is, find the ratio in which the line segment joining these two point is divided, इसको divide किया गया है by the line joining the point 6, 8 and -3, -2। बोल रहा है कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है ए बी को, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है मतलब सी डी, ए बी को सी डी किस रेशियो में डिवाइड करना है ये आपको निकालना है। क्वेश्चन समझे, फिर से पढ़िए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, 3, 4, 5 इज डिवाइडेड, उसको डिवाइड किया गया है बाय द line joining 6, 8 and -3, -2। समझे? सो ए बी को ये किस रेशियो में डिवाइड करना है ये आपको निकालना है। मान लेते हैं कि ये अब पता नहीं कि इंटरनली डिवाइड करता है या एक्सटर्नली, दोनों चीज हो सकता है। दिस सी डी में डिवाइड ए बी इंटरनली और CD may divide AB externally, we don't know। तो in this case we generally use this lambda is to 1 ratio। Let CD divides AB in the ratio lambda is to 1। Internally or externally we don't know। If lambda comes positive then the division will be internally। If lambda comes negative this division will be your externally। So we simply write let CD divides AB in the ratio
lambda is to 1. We have to find the value of lambda. Okay. So if CD divides AB in the ratio lambda is to 1, this is the dividing point. Let us suppose O. So O point divides AB in the ratio lambda is to 1. ये O पॉइंट तब AB को डिवाइड करेगा lambda is to 1 में. So can you find the dividing point? mx2 plus nx1 by m plus n. एक्सटर्नली डिवीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर लैम्डा नेगेटिव आ गया तो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नली डिवीजन हो जाएगा. लैम्डा पॉजिटिव आएगा तो इंटरनल डिवीजन होगा. ये m हो गया, ये n हो गया. m x2, ये x1 y1 x2 y2. सो m x2, x2 मतलब कौन हुआ? ये हुआ x1 y1, ये है x2 y2. सो x2 हो गया आपका 4. सो 4 लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 एम एक्स टू एन एक्स वन. ऐसे याद रखिएगा. m इधर का, फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगा बाई m प्लस n, और फिर लेमडा y2 मीन्स 5 लेमडा प्लस 1 इंटू 3 बाई लेमडा प्लस 1. दिस विल बी योर कोऑर्डिनेट ऑफ O पॉइंट. O पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकला. लेमडा कैसे निकलेगा? ये तो लेमडा के टर्म में निकला. हम लोग ये CD का इक्वेशन निकाल सकते हैं. CD का पहले स्लोप निकाल लीजिए. स्लोप ऑफ CD, स्लोप दो पॉइंट से अगर पास करता लाइन का स्लोप, डिफरेंस ऑफ देयर y कोऑर्डिनेट 8 माइनस माइनस 2 बाय डिफरेंस ऑफ देयर x coordinate minus minus 3. So it is 10 and it is 6 plus 3 9 is the slope of CD. CD का स्लोप निकल गया. तो CD का इक्वेशन निकाल लीजिए. इक्वेशन ऑफ लाइन CD, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. x1 y1 आप इसको भी ले सकते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं. चलिए इसी को लेते हैं. y माइनस y1, ये ले लीजिए x1 y1 तो प्लस हो गया. m इंटू x माइनस x1, इसको ले लिए माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, इज द इक्वेशन ऑफ CD. इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके. 9y प्लस 18 इक्वल टू 10x प्लस 30. आप इसको लिख लीजिए 10x माइनस 9y और 30 माइनस 18. तो 30 माइनस 18 कितना होगा? 12 है ना. 30 माइनस 18 कीजिएगा तो 12 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ये CD का इक्वेशन हो गया. ठीक है. अब ये O पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हमारे पास. इफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ CD, O पॉइंट मस्ट लाई ऑन CD. O पॉइंट भी तो इस CD लाइन का एक पॉइंट होगा. सो दिस O पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑफ CD. मीन्स इन प्लेस ऑफ x वी राइट x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O, and in place of y we write y coordinate of point O, and from there we calculate the value of lambda. ठीक है. तो यहां पर लिखते हैं therefore 10x, x के जगह पर लिखेंगे ये 4 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 2 बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस 9y, y के जगह पर लिखेंगे 5 लेमडा प्लस 3 बाई लेमडा प्लस 1 प्लस 12 इक्वल टू 0. ये हुआ. O पॉइंट CD लाइन में लाई करेगा, CD लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो यहां से लेमडा का वैल्यू निकालेंगे.
फाइंड लेमडा फ्रॉम हियर। एलसीएम लेमडा प्लस 1 ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 लेमडा प्लस 20 माइनस ये 45 लेमडा माइनस 27, और ये लेमडा प्लस 1 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो 12 लेमडा प्लस 12 इक्वल टू 0, ये होगा। सिंप्लीफाई कीजिए, -5 लेमडा -5 प्लस 12 7, क्या और ये क्या क्या बचा है, ये 20 माइनस 27 तो -7 हो गया, -7 प्लस 12 -7 प्लस 12 तो 5 हो गया, ठीक है। 20 माइनस 7 माइनस 27 -7 प्लस 12 5, so 7 lambda plus 5 equal to 0, so lambda equal to -5/7. This shows CD divides AB in the ratio externally. नेगेटिव आया ना, that is CD divides AB externally. अब आप लिख सकते हैं एक्सटर्नली इन दी रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करेगा भाई, लेमडा इज टू 1, यही था ना रेशियो, मतलब -5/7 इज टू 1। अब चूंकि यहां लिख दिए हैं कि CD डिवाइड्स AB एक्सटर्नली, एक्सटर्नली हो गया, ये माइनस साइन सिर्फ शो करता है इंटरनली या एक्सटर्नली, माइनस साइन आया है तो एक्सटर्नली, प्लस साइन आता तो इंटरनली, सो CD डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो, अब उसको प्लस में रखिए, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा 5:7 में, नेगेटिव साइन शो कर रहा था एक्सटर्नल डिवीजन को, समझ गए बात। रेशियो होगा आपका 5/7:1, नेगेटिव साइन के चलते ये वर्ड आया सिर्फ। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5:7, इट मीन्स CD लाइन डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो 7:1। तो हमारा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सॉरी 5:7, इस रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये डिवीजन हो रहा है एक्सटर्नली। तो क्या आप ये O पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब आप निकाल सकते हैं, एक्सटर्नली डिवीजन का फॉर्मूला यूज करके ये पॉइंट निकाल लीजिए कि किस रेशियो, अच्छा किस रेशियो में डिवाइड करता है ये निकालना था ना, पॉइंट तो निकालना नहीं। पॉइंट निकालना होता तो जो पहले लिखे थे उसमें लेमडा के जगह पर लिख देते -5/7, या दिस पॉइंट डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो 5:7, सो by using mx2 minus nx1 by m minus n, my2 minus ny1 by m minus n करके वो पॉइंट निकाल लेते हैं, लेकिन वो निकालना नहीं है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, 3 and 4, 5 is divided by the line joining 6, 8 and -3, 2. So line joining of these 2 points is divided by the line joining of these two in the ratio 5:7 externally is the answer. समझ गए? चलिए आगे बढ़ा जाए, एक क्वेश्चन और है इस वीडियो में।
कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स. दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इसके बीच का आपको एंगल निकालना है. दो लाइन ऐसे दिया हुआ है, एक लाइन का इक्वेशन दिया है आपको ये 2x minus y plus 3 equal to 0 is suppose this line, and this line is suppose this one, x plus 2y plus 3 equal to 0. This is equation of this line, this is equation of this line. Find the angle बिटवीन द लाइन. ये दोनों बीच के एंगल निकालना है. दोनों लाइन के बीच का एंगल, चार एंगल है, 1 2 3 4. ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इसको थीटा ले लीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा 180 माइनस थीटा. इसीलिए तो हम लोग यूज करते हैं प्लस माइनस एंगल का फॉर्मूला में. तो बस ये दोनों निकाल लीजिए, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा. ठीक है. So in order to get the angle between two lines, we must have their slope. दोनों का स्लोप निकाल लीजिए. इसका स्लोप क्या होगा? You write this equation in the form y equal to mx plus c. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिए. इसको आप लिख सकते हैं y equal to 2x plus 3. This is of the type y equal to mx plus c. So what is m? In place of m it is 2, means slope of this line. इसका स्लोप मान लेते हैं m1 है, तो ये m1 हो गया आपका 2. इसका स्लोप निकालिए. यहाँ से 2y इक्वल टू आप लिखिएगा माइनस एक्स माइनस 3. सो y इक्वल टू माइनस 1/2x माइनस 3/2. नाउ इट इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c. सो इन प्लेस ऑफ m ये हो गया y इक्वल टू mx प्लस c. से m के जगह पर है माइनस 1/2 इज द स्लोप ऑफ द लाइन. तो इसका स्लोप मान लेते हैं m2 है, और वो होगा आपका माइनस 1/2. सो इन दिस वे वी कैलकुलेट स्लोप ऑफ बोथ द लाइन, एंड वी नो इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ टू लाइन्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, then tan theta can be written as plus minus m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. We have taken theta is the angle between them, so tan theta will be plus minus m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. यहाँ प्लस और माइनस लेने का मतलब है जो प्लस में आएगा वैल्यू, जो प्लस लेकर के वैल्यू निकालेंगे, ये दोनों में से एक 180 से छोटा, एक 90 से छोटा, एक 90 से बड़ा होगा. दोनों का सम 180 होगा ना, तो एक 90 से छोटा होगा, एक 90 से बड़ा होगा. कौन सा छोटा कौन सा बड़ा होगा पता नहीं, तो हम लोग ऐसे लिए हैं कि थीटा, ये छोटा को थीटा ले लिए. मे बी थीटा इज मोर देन 90, तब ये लेस देन 90 हो जाएगा. तो दो एंगल है, एक 90 से छोटा, एक 90 से बड़ा आएगा. तो 90 से छोटा के लिए प्लस, एंगल अगर 90 से छोटा हो तो उसका 10 पॉजिटिव आता है, और 90 से जब जो बड़ा होगा उसके लिए 10 का वैल्यू नेगेटिव आएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू नेगेटिव होता है. 90 के ऊपर जब एंगल लेते हैं तो उसका 10 नेगेटिव होता है. तो इसीलिए यहाँ प्लस माइनस लिया जाता है. ठीक है. एक बार प्लस लेंगे तो थीटा का वो वैल्यू आएगा जो 90 से छोटा है, फिर एक बार माइनस लेंगे तो थीटा का वो वैल्यू आएगा जो 90 से बड़ा है. तो दोनों एंगल आपका निकल जाएगा. प्लस माइनस m1 माइनस m2 माइनस 1/2, सो माइनस माइनस प्लस बाय 1 प्लस m1 m2. ठीक है. तो प्लस माइनस ये हो गया एलसीएम 2 और हो गया 4 प्लस 1 5/2. नीचे 1, ये 2 कट गया, नीचे 0 आ गया जी. प्लस माइनस 5/2 बाई 0. सो 0 नीचे आने से तो इन्फिनिटी आ जाएगा.
वट एवर दिस में बी प्लस और माइनस, 0 से डिवाइड कीजिएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो जब इन्फिनिटी आएगा ना तो उस केस में दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। 1090 इन्फिनिटी होता है ना, तो इस केस में इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम लोग। ये जो 90 आता है ना, तो एक 90 है तो दूसरा भी तो 90 होगा ना, तो फिर प्लस माइनस लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस केस में ये जनरली इसको जब पॉजिटिव वैल्यू निकालना होता है तो मैग्नीट्यूड लेंगे। यहाँ चूंकि पहले तो मालूम नहीं था कि ये इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी जब ये प्लस माइनस और नीचे 0 आ जाए तो आप सीधा प्लस इन्फिनिटी ही लीजिए, क्योंकि एक अगर प्लस में है 90 तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली आपका माइनस 90 करने का जरूरत नहीं। एक 90 है तो दूसरा एंगल भी आपका 90 होगा। या आप ऐसा कीजिएगा, इसको अगर आप ऐसे लिखिएगा प्लस माइनस, जरा देख लीजिए, प्लस माइनस इन्फिनिटी अगर लिखते हैं तो एक बार जैसे टेन थीटा इक्वल टू आप इन्फिनिटी लिखते हैं तो थीटा ऑब्वियसली 90 होगा, और टेन थीटा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं तो ये माइनस 1090 होगा। अब ये माइनस को अंदर डाला जाए तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 10 180 माइनस 90 फिर लिखेंगे, 10 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस 10 थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 1090, तो वही आ जाएगा आपका 1090, है ना। इसलिए प्लस माइनस लिखे या ना लिखे बात बराबर है। चलिए लिख दीजिए, प्लस माइनस रहने दीजिए, 5/2/0 प्लस माइनस इन्फिनिटी। सो एंगल बिटवीन द लाइन इज 90, यानी दोनों लाइन जो है ऐसा परपेंडिकुलर होगा। एक एंगल 90 है तो दूसरा वाला भी 90 ही आएगा। बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, समझे बात। उसके बीच का एंगल हो गया 90। चलिए लिखिए इसको, प्लस माइनस इन्फिनिटी लिखिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या सीधा इन्फिनिटी लिख दीजिए, एंगल 90 हो गया, एक एंड 90 तो दूसरा ऑटोमेटिक 90 होगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स if their equations are given. So I hope you have, ये मोड लेने का जरूरत नहीं। If you want only one angle, देखिए जैसे मोड ले लेंगे हम लोग, मोड लेने से क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ये प्लस वाला आता है तो एक एंगल निकलता है, कौन, 90 से छोटा वाला। मान लीजिए मोड लेके निकाले और थीटा का वैल्यू 30 आ गया तो एक एंगल 30 आ गया, दूसरा होगा 180 माइनस 30। इस तरह से हम लोग दूसरा एंगल फिर निकाल लेंगे, दूसरा 150 होगा। ठीक है, अगर आप मोड लेके निकलते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेके 90 से छोटा वाला एंगल निकल जाएगा, फिर 90 से बड़ा वाला एंगल निकालने के लिए 180 माइनस करना पड़ेगा, या प्लस माइनस ले लीजिए, दोनों आ जाएगा एक साथ। ठीक है, वो आप जैसा इच्छा ऐसा करें, मोड लेना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड these three problems. In the next video we discuss something else related to equation of a straight line. Thank you for watching.